So he says that, sir, you don't teach good. You talk only your own talks. Now, if you would be charging against me, he has to have reasons for that. And whatever document which he would be sending to me, asking me that I have leveled charges against you such and such, because of these such and such charges, this is the laws happened to me. He would also, जैसे defamation का suit file होता है तो क्या होता है normally, क्वांटिफिकेशन ऑफ द इंडेमनिफिकेशन होता है ना, कि भाई साहब किसका नुकसान हुआ है, किसकी मान हानि हुई है, उसकी मान कितना था जिसकी हानि हुई है. सो क्वांटिफिकेशन. तो ये जो डॉक्यूमेंट मुझे चार्जेस लेवल करके देंगे, दैट शुड बी अ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट. Not only the final adjudication order should be speaking, but the first charge document, charge sheet होती है. चार्ज शीट में आप फिल्मों में देखते हो ना, और हमारे एडवोकेट ब्रदर्स तो रोज कोर्ट में भी देखते होंगे, अगर चार्ज शीट प्रॉपरली डिफाइंड ना हो, ड्राफ्टेड ना हो, तो केस तो खत्म है. दैट इज बीइंग शन अवे, दैट इज बीइंग कंप्लीटली शैटर्ड. So that the similarly show cause notice is a charge sheet made by the departmental officials, and it should not only contain the charge but the exact quantification of the tax, interest and penalty also. So now I am going to read in front of you that what should be, first of all we are understanding what should be the structure of the show cause notice. उससे पहले एक बात बता दूं आपको, there has always been a practice, a custom of pre-show cause notice discussion. Before filing a case against me, Mr. Sahgal became kind enough to speak to me through his lawyers that, sir, I am going to file a defamation suit against you. Would you like to talk in person with me? So that is pre-show cause consultation. Before the charges are leveled against me, the department goes, and especially earlier the limit was 50 lakhs. If the charges which are going to be leveled through show cause exceed 50 lakh, then it is compulsory for the department to go for pre-show cause discussion with the taxpayer. भैया तुम पर शो कॉज करने वाले हैं, देख लो ये हमारा वो है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम जो है चुपचाप इसको टैक्स को जमा करा दो. सेम प्रोसेस इज देयर अंडर रूल 142 DRC 01A. दैट इज द प्री शो कॉज नोटिस. द summary of the notice, although 1st January 2021 the department, the law has been amended and said that pre-show cause notice, that is DRC 01A, is not compulsory. If the proper officer is willing, that he may issue the summary of the notice, else he may directly go for DRC 01 notice, show cause notice. So friends, pre-show cause notice concept is already there in the GST law also. It was there in the excise regime also. The department has directed their officers also that always go for the pre-show cause notice discussion. And that's what, although they have used the word may, and it is being interpreted by us that it is their will that whether they issue or not, they can directly go for the, but it is advisable and they also follow it. By and large, they follow it. और प्रैक्टिकली अभी मैं बताऊं आपको, अभी तक तो शो कॉज नोटिसेस का सिलसिला चालू ही नहीं हुआ. अभी तक तो रजिस्ट्रेशन के शो कॉज आ रहे हैं, अभी तक तो 3B1 मिसमैच आ रहे हैं, शो कॉज आ रहे हैं, अभी तो नोटिसेस का जिक्र ही चालू नहीं हुआ. बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, शो कॉज नोटिस देना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. और आई नो मेनी, आई हैव सीन मेनी ऑफिसर्स, दोज who are not very much, capable or keen to issue such notices, because that requires a document to be created which is talking about Lord Rama at the beginning and Lord Rama only at the end. I have seen notices which is talking about the Lord Rama at the beginning,
and by the end of the notice Lord Rama became Lord Krishna. It is not possible, na? It took so many years to become Lord Rama, Bhagwan Vishnu ke avatar, to become Lord Rama, to become Lord Krishna. It took so many years in a single document. It cannot happen like this. So the document has to be created like this, that if a charge is leveled against me at the beginning, the same charge is continued. And moreover, my dear friends, quantification is very important for the charge. So anyways, so pre-show cause हमने discuss कर लिया. अब हम बात करते हैं मित्रों हमारे स्ट्रक्चर ऑफ शो कॉस्ट. स्ट्रक्चर ऑफ शो कॉस्ट. अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं एट द बिगिनिंग. यहाँ पर मैं 2-4 मिनट देना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. वैसे तो ये पूरा का पूरा बच्चा मेरा फेवरेट है, लेकिन ठीक है ना, मेरा बेबी है. यू नो, आई हैव बीन रीबॉर्न विद दिस बेबी ओनली, सो आई एम आल्सो 48 months old only. So friends, in every show cause notice, in every judicial proceedings, just a second, Vivek. So in every judicial proceeding, especially in show cause notices, in fact, you know, in 19th century Britishers made Indian Penal Code of Civil Procedure. You all know that. I don't have to tell you. मैंने तो अभी जुम्मा 5 साल पहले पढ़ा है, and you guys are, you know, born with that particular subject only. When I studied and I researched in 19th century, when the Code of Civil Procedure was being built, made by Britishers, the basic premise of the entire code was principle of natural justice. सारी बातों का अंत सिर्फ एक ही है. आपने हम एज ए ह्यूमन, मेरी बेटी मेरे पास आती है, भाई ने मारा है, तो मैंने भाई के खिलाफ जो है ऑर्डर, जो है ना, अरेस्ट वारंट निकाल दिया, पकड़ के ले आओ इसको. ही वुड से, सर पापा आपने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया, आपने सिर्फ हमारा को सुना, मुझे सुना ही नहीं. मुझे भी सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, मेरी बात तो सुनो. That's what the principle of natural justice. No one should be condemned without listening properly. That is called audi altum partum. That is a legal maxim since ages. This is an established principle of law, and in various cases, multiple, I would say not multiple but innumerable cases, the order was being set aside, the show cause notice was being set aside merely on this ground: audi altum partum is not being adhered. So principle of natural justice should be adhered, should be upheld. Principle of natural justice, दोस्तों मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि शो कॉज नोटिस को इनवैलिड कैसे बनाना है. अब आप नेगेटिवली पकड़ो, आपको ये पता होगा कि शो कॉज नोटिस में ये सब होना चाहिए, तो आप चेक करोगे. मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अभी 42 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ. अपना कैमरा ऑन कीजिए जरा सारे और मेरे सामने आइए. मुझे ये बताइए कितने मित्रों को, शलभ, कितने मित्रों को, अफकांश जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, जब शो कॉज नोटिस सामने आता है तो खुशी होती है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यस लिखिए, यस. शो कॉज नोटिस सामने आता है तो खुशी होती है. हमारे सुमित अग्रवाल जी बरेली से, खुशी होती है. मित्रों, ये खुशी का ही मौका है. सबसे पहले तो मैं आपका माइंडसेट बदलना चाहता हूं. अगर माइंडसेट बदल गया तो आपने डॉक्यूमेंट की बैंड बजा देनी है. हमें डॉक्यूमेंट मिलते ही पेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं. अरे यार, ये क्या स्यापा आ गया, ये क्या हो गया यार, क्या यार, क्लाइंट क्या बोलेगा मुझे? क्लाइंट क्या बोलेगा मुझे? क्लाइंट तो बोलेगा भाई साहब देखो क्या करना है, तो आप ही ने करना है. तो सबसे पहले शो कॉज नोटिस आते ही स्टार्ट फीलिंग गुड.
good opportunity to learn. It's not merely about money. Money is a secondary product. मतलब आपके जो बैंकों में पैसे पड़े पहले उनको तो यूज कर लो. क्यों इतने कमाने के चक्कर में हमसे में हमेशा लगे रहते हैं? क्यों लखानी साहब को मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं राजेंद्र को कैसे पता पड़ा मेरे अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं? So, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ हमारे पास दो इंसेंटिव है काम करने के. पहला कि जब मेरे टेबल से काम जाए तो सामने वाले कहे कि अगर राजेंद्र ने किया तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं है. और दूसरा, हाँ ऑफ कोर्स मेरे बैंक अकाउंट में it should continue inflating, but the most important objective should be the first one, that I should be satisfied. Yes, if I have sent something, yesterday we had to send a mail to one of new client who has proposed for some GST audits, internal audits. My partner brought a mail to me, but I rechanged it, redrafted myself, and wrote after that 7:30 p.m. session, wrote 3 pages by my own hand on a piece of paper with pencil. When when you are not satisfied and something is going from your office, so it has to go like that, as if it has directly incarnated from the heavens here only. So that is the objective. Anyways, so show call notice आते ही सबसे पहले तो अपने माइंडसेट में बिठा लो कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा ही हमारे पास एक मौका आया है आगे बढ़ने का, लर्न करने का, कुछ नया करने का. 3 इडियट्स देखी थी ना, वहां पर वो कहता है, और कोई उम्र नहीं है एक्चुअली पढ़ने की, बहुत सारी सीनियर बैठे हैं हमारे बीच में, ये सब जानते हैं. तो मित्रों को मेरा सबका ये रिक्वेस्ट रहता है, वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है आज की क्लास में जाने से पहले आज कुछ नया सीखेंगे, आज मजा आएगा. मुझे तो हर बार अपनी क्लास देने से पहले यही लगता है कि आज कुछ नया मैं खुद सीखूंगा, क्योंकि कुछ पढ़ूंगा. ये डॉक्यूमेंट जो है मैंने 10 बार पढ़ लिया होगा, लेकिन आपके पास आने से पहले फिर मैंने एक बार ही रिव्यू किया क्या लिखा है क्या लिखा है. आप देख रहे होंगे मक्कर साहब, मैंने 5 मिनट बाद आपको ज्वाइन किया, कैमरा ऑन कर दिया, बट आई वाज 5 मिनट्स रीडिंग. दैट इज, कुछ इशू था, मेरे को था यार इसमें क्या लिखा है इन्होंने, आई वाज रीडिंग दैट. सो दैट वे you should feel that now I'm going to learn something good. The moment that mindset comes, believe me, you are yourself complete. You do not need any Rajendra Arora. Take it from me. Never. Now, structure of the show cause notice. Structure of the show cause notice should be like this. First, the department says that the introduction of the case should be there. What is the case? Who is the person? उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, क्या काम करता है, एक्टिविटी करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और बेसिकली इनिशियल आपको प्रॉब्लम क्या है उससे, ब्रीफली इंट्रोडक्शन. देन लीगल फ्रेमवर्क, फिर आप बताएंगे उस प्रॉब्लम में समस्या क्या है, जिस सेक्शन में आपने उसको नोटिस दिया है वो बताएंगे आपसे. दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क. देन फैक्चुअल स्टेटमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस. फैक्चुअल स्टेटमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस. देन आप ये बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, गलतियां हैं आपकी फैक्ट्स के बेसिस पे, और एविडेंसेस क्या है आपके पास. अगर ये सब नहीं बताता ना वो, तो शो कॉज नोटिस इनवैलिड है. वो आपका केस इंट्रोड्यूस नहीं करता, GSTIN नहीं प्रॉपरली लिखता, नाम में गलती लिखता है, एड्रेस में गलती लिखता है, फैक्ट्स में गलती लिखता है, अमाउंट में गलती लिखता है, इंस्टांसेस में गलती लिखता है, इनवैलिड है. उसको भी मैं बताऊंगा. आप ओवरऑल नोटिस को चैलेंज ना करें, लेकिन अपना केस जरूर स्ट्रॉन्ग करें, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में. देन discussion of facts read with legal framework. आपने फैक्ट्स को लीगल फ्रेमवर्क से कनेक्ट करते हुए दिखाना है. देन आपने लिमिटेशन के ऊपर बात करनी है कि क्या आपको पता है हमारे यहाँ सेक्शन 73 में आपको शो कॉज कितने दिन तक हो सकता है. आपको हो सकता है 3 years from the due date of filing of annual return for the respective financial year, and that period extends to 5 years in case of 74.
फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। मेरी पीपीटी में मैंने 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों सालों के आपको टाइम लिमिट बताए हुए हैं। 3 साल कब होते हैं पूरे, 5 साल कब होते हैं पूरे, आप देख लीजिएगा एक बार, याद करिएगा, याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा। देन आपका वो ये बताएगा कि आपका एक्सटेंडेड पीरियड लगाया है उसने। एक्सटेंडेड पीरियड कौन सा है? 5 साल का। अभी तो लगाने की उसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि भैया 2020 में 5 फरवरी 2020 को 17-18 की रिटर्न फाइल हुई थी, तो 2025 तक उसके 5 साल चलते हैं। ठीक है जी। तो अभी तो 23 भी पूरा नहीं हुआ, तो 3 साल भी उसके चलते हैं। तो एक्सटेंडेड पीरियड लगाने की उसको आवश्यकता, मतलब लगाएगा 74, फ्रॉड का ही चार्ज लगाएगा आप पे, लेकिन उसको ये प्रूव नहीं करना कि एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। अभी तो उसका नॉर्मल पीरियड ही चल रहा है 3 साल का, लेकिन लगाएगा 74। आप देखिएगा नॉर्मली केसेस में अब ये भी बड़ी समस्या है, पहले ऐसा नहीं होता था। इस कानून में कल गौरव भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, द वाटर हैज बिकम डर्टी एंड वी हैव पुट आवर बेबी इन द डर्टी वाटर एंड it is bound to happen, there could be some some ailments, कुछ बीमारियां लगनी लाजमी है। now the water is to be cleaned once for all, that कहते हैं ना वो उसका शुद्धिकरण, that शुद्धिकरण is required to be done. so what I was trying to bring home was that law of limitation में 5 साल लगाने की अभी उसको आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड लगाता है तो उसको उस बात को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट मतलब उसको एग्जेम्पलीफाई करना है, प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि क्यों वो तुम पर एक्सटेंडेड पीरियड लगा रहा है। मतलब फ्रॉड की इंटेंट है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की, मिस स्टेटमेंट की इंटेंट है, विद द इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर वो है तो उसको वो प्रूव करनी है। हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूं मित्रों कि एक्सटेंडेड पीरियड लगाने में 2-3 बातें एक्सटेंडेड पीरियड नहीं लगा पाती, और ये जीएसटी में आपको आने वाले 4-5 सालों में, 5 साल के बाद भी, मतलब मैं अगले 7 साल की बात कर रहा हूं आपसे, 4 हुए और 6 की और बात कर रहा हूं, टोटल 10 साल। अगले 6 साल की बात कर रहा हूं मैं, आज ही आपको बता रहा हूं कि आपका अगले 6 साल तक आपको एक समस्या से, परेशानी से मैं छुटकारा दिलवा रहा हूं। एक्सटेंडेड पीरियड लगाता है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आप पर लगाएगा तो एक्सटेंडेड पीरियड लगाएगा। एक्सटेंडेड पीरियड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के बेसिस पर नहीं लगाया जा सकता। इफ मक्कड़ साहब सेज दैट दिस इज अ पेन and I say no sir, this is a marker, both have largely the same objective to achieve, but Makkar Sahab says this is a pen. I say no, this is exactly a marker, but both have a common characteristic, that is the writing instrument. And in GST everything is subject to different interpretation today, unless either the circular issued for clarification, even if circular issued for clarification not binding on the taxpayer, or the jurisprudence establishes, either tribunals तो unfortunately हमारी व्यथा ये है कि ट्राइब्यूनल्स फॉर्म भी नहीं है। कल ये भी बात हम कर रहे थे, आपको देखा होगा कि जो किसने बोला था, मेरे ख्याल क्रिस्टोफर साहब ने, गगन जी ने बोला था शायद ये बात, कि ट्राइब्यूनल्स नहीं है। ट्राइब्यूनल्स ना होना मतलब you go for a petty registration appeal to a high court by way of writ under article 226 anyways. So unless that, एक्चुअली क्या होता है, प्लीज मित्रों मुझे क्षमा करिएगा, ये जो जीएसटी है एक बरगद का पेड़ है, और इस बरगद के पेड़ पे मैं एक छोटा सा बंदर हूं, और मैं इसके एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक फुदकता रहता हूं। तो मैं जब एक टॉपिक को टच बेस कर देता हूं तो इमीडिएटली दूसरा मेरे दिमाग में आ जाता है, सीडी उस ट्रैक पे चली जाती है मेरी। लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि मैं सीडी को अपनी एक ही धुरी पे घुमाऊं, एक ही सेंटर पे घुमाऊं, ताकि वो समझ में आए।
हालांकि अदरवाइज आप कहें तो मैं सेक्शन 1 से लेकर 174 तक की सबकी लिंकिंग आपको बिना एक्ट के ही करके दे सकता हूँ, 4-5 घंटे लगेंगे। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग होम, लॉ ऑफ लिमिटेशन में आपको वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपके ऊपर एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक नहीं कर सकता। और आप तो देखिए हर चीज इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टुडे, बट हाउ वुड यू प्रूव दैट यू वर बोना फाइड? फॉर एग्जाम्पल, मक्कर साहब इज इन इंडस्ट्री। सर मक्कर साहब इज वेरी नियर टू अस बिकॉज मक्कर साहब आपको पता है एक यहाँ पर राकेश मक्कड़ जी भी हैं दिल्ली में, हमारे चेयरमैन रहे हैं, वो एनआईआरसी के हमारे गुरु भी रहे हैं, तो हमारे बड़े नजदीक है। आई मेट हिम। तो इसलिए मक्कड़ साहब हमारे बड़े नजदीक है सर, जितने भी मक्कड़ हैं। सो मक्कड़ साहब इज इन इंडस्ट्री, he says this is pen, his consultant says, auditor says this is marker, he comes to me, Rajinder, I am in a fix, I feel that it is a pen, my auditor says that it is a marker, the rate of text का different है, पेन का रेट है 12, ये मार्कर का रेट है 18, what to do यार? Now what should I suggest to Makkar sahab? He is my good friend, he is my elder brother. I suggested him, listen to me very carefully, this is going to help you tomorrow. I suggested to Makkar sahab, sir, please take a written opinion from an expert. Adopt that written opinion in your board. Pass a resolution for the respective act. And accordingly, you do whatever you want to do. Not tomorrow, auditor says, okay, it is 18%, he writes it. Auditor is also satisfied because the taxpayer is doing on the basis of an expert opinion. His responsibility was as an auditor, although अब तो खैर GST auditor ही चला गया, इतनी अच्छी बातें हम करते थे, इतने अच्छे हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालते थे ऑडिट के ऊपर, कंप्लायंसेस करते थे, टैक्स पे कराते थे, सरकार सब वंचित रह गई उन सब बातों से। खैर उनकी किस्मत, हमें क्या लेना देना, हम तो काम करने वाले लोग हैं, जहां जिस जगह भेज देंगे, हम तो अपना डेवलपमेंट ऑफ लॉ करना है, हम तो डेवलपमेंट ऑफ लॉ करते रहेंगे। तो अब मक्कड़ साहब ने 12% रेट लगा दिया। अब हमारे वर्मा जी हैं, गुस्से में बैठे हैं, अभी अफसर दिख रहे हैं, पूरे अफसर हैं, मतलब जैसे डिप्टी कमिश्नर, ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट और डिप्टी और ज्वाइंट कमिश्नर ऐसे दिखते हैं हमें। तो ये हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं, ये आ गए और मक्कड़ साहब के ऑफिस में कि भाई साहब आपने तो जो है ये 12% गलत रेट लगाया। इन्होंने शो कॉज कर दिया, इन्होंने कहा आपने विद द इंटेंट ऑफ फ्रॉड किया ये। जब आप ट्रिब्यूनल जाएंगे मक्कड़ साहब, देयर आर मल्टीपल जजमेंट्स, क्योंकि आप बोनाफाइड थे, you were already aware of the fact that it was subject to different interpretation, you took an opinion from Rajendra Arora, I am assuming sir, you didn't say but I am assuming you took an opinion from Rajendra Arora. सर मैं अपना काम पे रहता हूँ सर, मैं इधर उधर नहीं जाता हूँ सर, मछली की आंख। तो you took an opinion from Rajendra Arora, tomorrow nobody would say that you were having malafide intention. Culpable state of mind under section 135 is being deproved that you did not have your culpable mens rea was not there, which is commonly known in our legal fraternity. Mens rea is not there. So tomorrow penalty will not be levied against you. Tomorrow extended period cannot be invoked against you. So this is the best practice which we have been following, especially in this present today's time, जहां पर GST जो है इवॉल्व हो रहा है, हर रोज कोई नई बात हमें समझ में आती है, हर रोज कोई नया डायमेंशन ऐड होता है। एनीवेज, सो मक्कड़ साहब एक बात बता रहे थे अभी शुरुआत में कि मैंने एक किताब लिखी है। कल एक किताब को, मैं जब से क्वालिफाई हुआ हूँ, मेरी हमेशा इच्छा थी कि मैं किताब लिखूं। तो अब मैंने वो 15 साल तो खैर नहीं, 20 साल हो गए, 20 साल से मैं सोच रहा था। तो अब वो फाइनली मैंने क्या किया, पिछले 1 साल से लगभग 100 आर्टिकल्स लिखे इन द फॉर्म ऑफ FPGST सीरीज। अब मैंने उसको कंपाइल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बुक। मैंने क्या किया, उन सारे आर्टिकल्स को जो साल भर पहले भी लिखे थे, उनको अप टू डेट लॉ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर साल पहले कुछ लिखा था और कानून में आज डेवलपमेंट है, तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में कानून बिल्कुल एग्जैक्ट है, अप टू डेट है।
तो वो किताब, तो मेरे को ये दिमाग में किताब की बात बतानी अभी क्यों आई, ये जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की कहानी है ना मित्रों, ये क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि आप when read a piece of law, you come to know new thing every time you read a particular section or a piece of law. So that is why, anyways. So moving ahead, next thing in the structure of the show cause notice should be quantification of duty demanded. क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्यूटी डिमांडेड, जो ड्यूटी आपसे मांगी गई है उसकी क्वांटिफिकेशन, अगर वो क्वांटिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, अगर वो कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं है, शो कॉज नोटिस वैलिड नहीं है। और एक और बात मैं यही बता दूं मित्रों आपको, अगर डिमांड मांगी गई है 1 करोड़ की, वर्मा जी हमारे ज्वाइंट कमिश्नर है, 1 करोड़ का शो कॉज बेच दिया हमें, तो भाई साहब 1 करोड़ 1 लाख रुपए का ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। अगर 1 करोड़ 1 लाख का ऑर्डर इशू करना है तो सेपरेट शो कॉज नोटिस देना होगा मुझे 1 लाख का। और तो शो कॉज नोटिस की ब्यूटिफिकेशन ये है, ब्यूटी ये है कि डिमांड उसको पहले क्रिस्टलाइज करनी है कि मैं कितनी डिमांड चार्ज कर रहा हूं टैक्स पेयर के अगेंस्ट, उससे ऊपर वो एडजुडिकेट नहीं कर सकता। अगर करना है तो भाई साहब आपको सेपरेट शो कॉज देना है मुझे, और एक ही शो कॉज एक ही साल के लिए एडिशनल शो कॉज देने के लिए एक सिर्फ चिट्ठी भी काफी है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 3। ठीक है जी, मैं आपको लिंकिंग करता जा रहा हूं, सेक्शन 73, 74, 75 को भी मैं लिंकिंग करता जाऊंगा आपसे। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेरा छूट गया था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 3 बातें बड़ा ध्यान रखिएगा। इस सर्कुलर में भी उन्होंने उन तीनों बातों का ध्यान रखा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिटन, इन राइटिंग। वर्मा जी आप नए ऑफिस में बैठे हैं अपने, विकास वर्मा जी नए ऑफिस में बैठे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, पार्टी दे दीजिएगा। और हमें पता है आपको पार्टी देने आना पड़ता है, आपको पता है ना। सो सेकंड लिम्ब इज opportunity of, first is opportunity of being heard in writing, second is opportunity of being heard in person, दूसरा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉर्मली हम वैसे तीनों को भूल जाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं मुक्कड़ साहब, नए कानून के आने से बड़ा फायदा हुआ, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले कानून की तो बस हम गाड़ी चला रहे थे, आई चलाई चल रही थी, आई चलाई। मतलब मैं बता रहा हूं डीवैट एक्ट 90% लोगों ने नहीं पढ़ा था, हमारा जीएसटी एक्ट 60% लोगों ने पढ़ा है। तो आप सोचिए कितने सारे लोगों ने ये नया कानून आने, और नए कानून आने की वजह से हमारे जो नए मित्र हैं, यंग फ्रेंड्स हैं, हमारे जो युवा साथी हैं हमारे, उनको बड़ा मौका मिला है आगे आने का। अब हमारे विकास वर्मा जी तो हमारे सीनियर हैं, अब हम इनके जूनियर हैं, हमें मौका मिल गया पढ़ने का। तो हमने कहा भाई साहब ठीक है, हम तो हालांकि हम वर्मा जी के साथ नहीं बैठ सकते अभी भी, ठीक है हमारे तो बॉस हैं, लेकिन हम मतलब मौका मिला हमें आगे बढ़ने का। तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, विकास भैया तो हमारे मेंटर हैं, बड़े भाई हैं। मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड पे हम हमेशा इलेक्शन इनकी वजह से जीतते हैं, इसलिए मैं इतनी बातें इनके बारे में बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम इनसे तो बचपन का है। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो हम आमतौर पर भूल जाते हैं, और वो है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस एंड विटनेसेस। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस एंड विटनेसेस। So if, and department also has said in its circular that if a particular statement is recorded and on the basis of that statement show cause notice is issued, if demanded, please listen to me carefully, if demanded, cross examination of the witness or the statement should be allowed to the taxpayer. Notice should be allowed. So
नेक्स्ट इज या क्वांटिफिकेशन हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात इंटरेस्ट से पहले बता दूं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे सारा समअप करने की कोशिश करूंगा। 73-74 में 5 ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जहां पर आपको नोटिस आ सकता है। 5 ट्रिगरिंग पॉइंट्स कौन से हैं? टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, ITC wrongly availed, wrongly utilized, erroneous refund claim। ये हमारे 5 प्यारे हैं, ये मुट्ठी। इन 5 में से कोई एक ट्रिगर होगा तो शो कॉज हो सकता है। अब मेरा सिंपल सवाल है हमारे दोस्तों से, मुझे ये बताइए कि आई एम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and I have purchased some goods, furniture for example, and unfortunately I came to know that the person from whom furniture was purchased supplied me fake invoices, and the department charged against me, said to me that the input tax credit should be reversed. Now I would say, sir, I have never taken input tax credit, I am unregistered person, I am supplying exclusively exempt supply of services. Then department says, okay, we will charge penalty against you, you took purchases from furji dealer. Can he do so? Answer is yes or no. No. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन दोनों को तीसरा क्वेश्चन बनाऊंगा इन दोनों को लिंक करके। सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन 75 टॉक्स अबाउट जर्नल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस और फंडामेंटल्स फॉर द एडजुडिकेशन। क्या क्या फॉलो करना है डिपार्टमेंट के लिए कहा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में 75(4) में लिखा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए अगर डिमांडेड है तो। मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हालांकि अबाइड बाय होना चाहिए, लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपने सुनवाई का मौका मांगा है तो मिलना चाहिए, और अगर नहीं मांगा तो नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन लॉ कहता है कि सुनवाई का मौका मांगा है तो मिलना चाहिए। तो मित्रों हाथ जोड़ के विनती है, हर लेटर में जरूर लिखेंगे कि जहां भी कोई एडवर्स ऑर्डर पास करेंगे आप मुझे सुनवाई का मौका देंगे, मुझे पर्सनल हियरिंग का मौका देंगे, उसके बिना आपको एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करेंगे। आप जरूर लिखिएगा। हालांकि हम इनकम टैक्स में तो हमेशा लिखते थे, क्यों विकास भैया, वहां प्रैक्टिस है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एडहियर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। 75(4) में कहते हैं सुनवाई का मौका मिलेगा अगर मांगोगे तो। अरे भैया पूरी दुनिया का कानून जो है वो सुनवाई के मौके पर चलता है। खैर एनीवेज, मैंने आपको एक क्रिटिकल इशू बताया। तो अब अगला क्वेश्चन ये है 75(12। मैं एक एक करके सब सेक्शन के हिसाब से सारी चीजें तोड़ दूंगा और एक बरगद के पेड़ पे फैला दूंगा, और इस पर नाच तो वही सकता है जो बंदर बनेगा। गणेश जी हंस रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी कंपनी बन करने के लिए तो आपको भाई साहब गणेश जी, तो 75(12 ये कहता है, बहुत ही सुंदर प्रोविजन है, और इसमें अभी फाइनेंस एक्ट 2021 में परिवर्तन भी आया है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक केस था कबीर रियलिटी का, बहुत ही सुंदर जजमेंट। हालांकि मैं बहुत सारी बातें, क्योंकि समय का देखिए मैंने कहा ना 1.5-2 घंटे में मैं क्या बहुत सारा चीजें डिस्कस करना शो कॉज नोटिस में संभव नहीं होता, लेकिन मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूं और वो मैं होपफुली कर जाऊंगा। तो 75(12 में ये लिखा है कि अगर आपने अपनी सेल्फ असेस्ड टैक्स को पे नहीं किया तो भाई साहब हम आप पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देंगे 79 में, ठीक है जी। भाई साहब मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल है इसके ऊपर, सेल्फ असेस्ड टैक्स समझते हैं ना, जो 3B में फाइल होता है सेक्शन 59 में। मैंने टैक्स तो पे किया लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया,
लेट पे किया, 75/12 में ही आ रहा हूं, लेट पे किया, 3B लेट फाइल किया, लेकिन ब्याज नहीं दिया। अगर ब्याज नहीं दिया तो क्या ब्याज के लिए डायरेक्ट रिकवरी हो सकती है? आंसर इज यस और नो। अफकांश जी ने एकदम गजब सीधा, नहीं हो सकती। मोनिका बजाज कहती है हो सकती है, गणेश रात्रि जी कहते हैं नहीं हो सकती। अगला सवाल मित्रों, क्या ब्याज रिकवरी के लिए भी शो कॉज देना आवश्यक है? वनीता गुप्ता, शानदार वनीता जी, इंप्रेसिव। शो कॉज जरूरी है, गुड। आज ही तुम्हें कहा था कि एक्सप्रेस, हाँ बहुत बढ़िया, इम्प्रेस, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो शो कॉज इज नेसेसरी माय डियर फ्रेंड्स। दाइजंग मोपाट, महादेव कंस्ट्रक्शन, एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, वेरियस जजमेंट्स, जहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, सबने कहा कि भाई साहब इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए भी शो कॉज नोटिस नेसेसरी है। तो मित्रों एक बात तो आप दिमाग में बिठा लीजिए, अब मैं इसको यहां पर लिंक करूंगा सम्मन्स के साथ। एक बात तो आप बिठा लीजिए कि आपसे 1 रुपया भी रिकवर करने के लिए एडिशनल इस कानून में सरकार को शो कॉज देना अत्यंत आवश्यक है। अब मेरा अगला सवाल आता है फिर, क्या सेक्शन 70 में सम्मन करके मुझसे रिकवरी की जा सकती है? बड़ा सिंपल सा जवाब होगा इसका, क्योंकि पुराने सवाल में मैं इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं। क्या सेक्शन 70 में सम्मन करके मुझसे रिकवरी की जा सकती है? आंसर दीजिए यस और नो। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आशीष सिंह बंबई से। आशीष जी अल्फांसो की वेट कर रहे हैं हम अभी भी जी। मकर साहब एक्चुअली हुआ क्या है कि ऐसे मित्र बन गए हैं जो रेगुलर मेरे साथ रहते हैं, तो वो परिवार बन गया है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है उनके साथ नाम से उनको रेफर करने में। अब अवकाश जी भी रेगुलर प्रोग्राम में आ रहे हैं हमारे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी गिवन। और सबसे जरूरी बात, एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने, बैग योर पार्डन, कहा कि क्वांटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कैलकुलेशन तो दीजिए कि क्या रिकवरी करना चाहते हैं, तो बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं हो सकता। चलिए जी आगे बढ़ता हूं इसी में। और जी अगला पॉइंट, मैं ऑलमोस्ट ऐसे इसमें से मेजर मेजर इश्यूज ले चुका हूं आपके साथ। ये ध्यान रखिए शो कॉज नोटिस पे मिलते ही कि किसने इशू किया है, क्या उसकी अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी कहां से निकलेगी? अथॉरिटी निकलेगी हमारी हैप्पी जीएसटी सीरीज 77, 78, 79 से, जिस जो लिखी गई है सर्कुलर 3 के ऊपर। सर्कुलर 3 है पावर्स ऑफ द अथॉरिटीज। 77, 78, 79 हैप्पी जीएसटी सीरीज प्राप्त करें। और हमने वो सर्कुलर क्लेरिफाई नहीं करता, सर्कुलर सिर्फ सेक्शन लिखता है। हमने सेक्शन का पूरा कंटेक्स्ट लिखा है, रेफरेंस लिखा है, पूरा टेक्स्ट लिखा है। तो वो 40 पेज का है, मेरे पास पीडीएफ में है, जो भी चाहे। तीनों सीरीज को मैंने क्लब किया है। ये 77, 78, 79 है, 75 के बाद किया, तो उसको अभी कंपाइल नहीं किया है। तो जो भी चाहे मुझसे मांग लें। पावर्स ऑफ द अथॉरिटीज उसमें लिखी है कि सुपरिटेंडेंट की क्या पावर है, एसी की क्या पावर है, डीसी की क्या पावर है, जेसी की क्या पावर है। सबकी पावर्स वहां लिखी हैं। तो वो पावर आप देखिए जरूर कि क्या उसकी। अब मान लीजिए आपने बहुत सारी बातें देख ली, लेजिबल होना चाहिए, लॉर्ड रामा का लॉर्ड रामा ही रहने चाहिए, लॉर्ड कृष्णा नहीं होने चाहिए, चार्ज प्रॉपर होना चाहिए, क्वांटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां बता दूं, सर्विस ऑफ नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस मित्रों, अगर सर्व नहीं हुआ ना नोटिस प्रॉपरली, तो सारी बात खत्म हो जाती है। सारी की सारी कहानी जो है वो चैलेंज हो जाती है। इसलिए सर्विस ऑफ नोटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सेक्शन 169 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 169 क्या बोलता है, आप जरा नोट कर लें इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मेरी पीपीटी में आपको सब मिलेगा। यहां पर 6 क्लॉजेस हैं सबसेक्शन 1 के। जी बिल्कुल, ABCDEF। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर्विस ऑफ नोटिस, सिर्फ नोटिस नहीं, सभी प्रकार की कम्युनिकेशन बाय द डिपार्टमेंट टू द टैक्स पेयर इसी तरीके से सर्व हो सकती हैं। तरीका क्या है? काशी बर्तन भंडार इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी रिसेंट 2019 का जजमेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भैया तुमने सर्विस प्रॉपर नहीं की थी, नोटिस इज इनवैलिड, गो बैक, सर्व प्रॉपरली। ऑर्डर क्वैश कर दिया, सॉरी ऑर्डर ही क्वैश कर दिया, नोटिस नहीं, ऑर्डर ही क्वैश कर दिया। तो इसलिए सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, देखिए कल भी गौरव जी और जतिन जी ये बात कर रहे थे, अगर मक्कड़ साहब आपने सुना हो, हमारे बहुत सारे और मित्रों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि एसएससी जो है ना वो खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं रखता अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव। टैक्स पेयर कहता है कि भैया मक्कड़ साहब यार निपटवाओ यार इसे, वर्मा जी प्लीज यार, वर्मा जी सारे अपने आप ही निपटा देते हैं, हमारे तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, वर्मा जी निपटाओ यार, देखो देखो मुस्कुरा रहे हैं ना, जो पकड़े गए, वर्मा जी निपटाओ। वर्मा जी इतने जबरदस्त हैं कि फटाफट निपटा देते हैं, हमें तो काम करना है। राम जेठमलानी साहब से पूछा गया, सर राम जेठमलानी तो हमारे लिए आदर्श है, इज एन आइडल। तो उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि सर हाउ डू यू डिजाइन द लाइन ऑफ आर्गुमेंट? ही सेड आई डोंट डू एनीथिंग, प्लीज डोंट टेक इट लिटरली। He said I don't do anything, whatever my client says, that is a gospel truth for me, as if the Lord Krishna himself appeared again on this earth and said, Ram, this is the only truth, rest everything is myth. So that's what Vermaji and me do. My client says I am innocent, I have not done chori. What should I do? What should I do? I would protect him in any case. If the government would hire me and make me the prosecutor, then I would charge against him that he's a chore. Otherwise, I would protect him. As simple as that. This is what the Advocates Act also say. I am only the assistance. I am the assistance to the court to reach to the justice, as per the Advocates Act. An advocate is merely an assistance. We don't do anything. We just put forth the points before the honorable bench, the judge, and their wisdom is unparalleled. We cannot challenge that at all. We have seen it multiple occasions, innumerable occasions. So that way, my client says, I have not done chori, so I would do that accordingly. Now the question is, section 169 क्या बताता है सर्विस ऑफ नोटिस का? मैंने वही कहा ना, मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर की, हालांकि वैसे मक्कर साहब आपने कभी परफ्यूम खरीदा? भाभी जी के लिए कभी तो खरीदा होगा, अर्ली डेज में तो खरीदा ही होगा, अब तो खैर चलो सिचुएशन डिफरेंट हो गई। वर्मा जी हंस रहे हैं, वर्मा जी कहते हैं मैं तो अभी भी खरीदता हूँ तेरी भाभी के लिए। तो सर जब आप परफ्यूम टेस्ट करने जाते हैं ना सर, तो आपको कॉफी बीन्स टेस्ट कराए जाते हैं, एक परफ्यूम के बाद दूसरे परफ्यूम से पहले। कॉफी बीन्स आर देयर टू मेक यू और पुट यू बैक इनटू द नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। जब मैं ऐसी बातें बोलता हूं ना सर, तो ये कॉफी बीन्स होती है। सो अगली परफ्यूम से पहले कॉफी बीन्स जरूरी होती है। सो सेक्शन 169 ABCDEF 6 सब क्लॉज है सबसेक्शन 1 के। वो कहते हैं भैया ऐसा करो, इन पर्सन भेज दो नोटिस, और कोई भी कम्युनिकेशन, नोटिस ही नहीं, कोई भी लेटर कम्युनिकेशन कुछ भी, नोटिस इन ऑर्डर कुछ भी इन पर्सन भेज दो। कहते ठीक है जी, इन पर्सन नहीं भेज पा रहे तो कुरियर, साथ ही में पहले ही पॉइंट में कुरियर से भेज दो। चलिए पहला पॉइंट खत्म, नहीं भेज पा रहे, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेज दो है जी। ऐसा करो ईमेल कर दो, नहीं कर पा रहे ऐसा करो पोर्टल पे फ्लोट कर दो चारों,
ऐसा करो, कुछ नहीं कर पा रहे, पोर्टल पे भी कुछ नहीं मिल रहा, इनएक्टिव है, कैंसिल्ड है, सब खत्म है। ऐसा करो, आप उसके जो लास्ट नोन रजिस्टर्ड प्लेस था ना, वहां चिपका दो, वो भी नहीं मिल पा रहा। ऐसा करो, हमारे जेसी साहब तो बैठी हैं, वर्मा जी के ऑफिस के बाहर चिपका दो प्रोमिनेंटली नोटिस बोर्ड पे, सर्व्ड, कंसिडर्ड सर्व्ड। These are the ways and means to serve the communications to the taxpayers. And multiple judgments are there, जो कि सिर्फ सर्विस ऑफ नोटिस पे ही नोटिस को इनवैलिड ट्रीट कर दिया या ऑर्डर को क्वेश कर दिया। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू ऑल, कैन ए बी सर्कुलेटेड विद बी? Yes or no? Can A be circulated with substituted, I beg your pardon, substituted with B? Can A be substituted with B? Ganesh ji says no. Can A be substituted with F? When A cannot be substituted with B, how could it be substituted with F? So my dear friends, in sequence, in order of priority, these 6 ways should be adopted by the proper officers for the service of the communication. If not followed, then again I have already told you for that. Then adjudication. एडजुडिकेशन के बाद में आपको, एडजुडिकेशन में तो बेसिकली प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की मैंने बात बता दी आपको। एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 75 में ही लिखा है कि आपको मैक्सिमम जो एडजॉर्नमेंट्स हैं वो 3 मिलेंगी, सिर्फ 3 एडजॉर्नमेंट्स मिलेंगी, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगी। 3 से ज्यादा वो आपका केस जो है एडजस्ट कर देगा, सेल्फ जजमेंट, बेस्ट जजमेंट पास कर देगा। तो एडजॉर्नमेंट लेते हुए आप प्लीज बड़ा ध्यान रखिए। एडजॉर्नमेंट आपको, आप कहोगे बड़ी फिल्मों की बातें करते हो सर आप। सर देखिए, फिल्मों को जब आप रूटीन नॉर्मल लाइफ में लिंक कर देते हो, सब बातें याद रह जाती है वो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आपको याद है गोविंदा की मूवी थी जिसमें वो वकील बना था, जब भी वो एडजॉर्नमेंट लेता था केस पलट जाता। तो आप भी एडजॉर्नमेंट थोड़ा इंटेलिजेंटली लें केस पलटने के लिए, ऐसे ही कैजुअली एडजॉर्नमेंट ना लें, क्योंकि 3 से अधिक मिलनी नहीं है, मिलनी नहीं है। ठीक है जी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए आपके यहां पर इंस्पेक्शन हुआ सेक्शन 67 में, सब सेक्शन 1 में, या सब सेक्शन 2 में सर्च हुई, सर्च हुई, सर्च में सीजर हुए डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, इंफॉर्मेशन, थिंग्स, और उनके बेसिस पे 67 का रिजल्ट क्या होता है, इंस्पेक्शन का रिजल्ट क्या होता है पता है? शो कॉज। सिंपल। 65 के ऑडिट का रिजल्ट क्या होता है? शो कॉज। तो आपको शो कॉज हो गया। सर्च में उन्होंने सीज किया आपके डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, उनके बेसिस पे उन्होंने आपका शो कॉज ड्राफ्ट किया, आपको सर्व कर दिया। Now there are 2 types of documents. The first seized documents shall be divided into 2 categories. First category is the one on which the department has relied upon to issue the show cause. जो charges उन्होंने लगाए, वो charges उन documents के ऊपर rely करके लगाए। So the documents which are seized divided into 2 segments. First are those which are relied upon documents. Second are those which are not relied upon documents. The department is under
legal obligation to send back those documents within 30 days of issuance of show cause notice, which are on which no reliance is placed, not relied upon. This one. And relied upon documents, whether seized by you only or gathered by the department from any other source. This could be possibility कि सर्च नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट सीज नहीं हुआ, लेकिन शो कॉज तो आ सकता है. और शो कॉज आएगा तो उनके पास कुछ ना कुछ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स होंगे कि भैया ये चिट्ठी है तुम्हारे खिलाफ, ये ईवे बिल का रिकॉर्ड है तुम्हारे खिलाफ, ये तुम्हारा थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है तुम्हारे खिलाफ, ये स्टेटमेंट है तुम्हारे खिलाफ थर्ड पार्टी का. वो सारे रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं. वो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अगर आपको शो कॉज नोटिस के साथ नहीं मिलती है तो मित्रों शो कॉज नोटिस का सर्विस नहीं हुआ. ये सर्विस के लिए लिंक था इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया. सर्विस नहीं हुआ. सर्विस वुड ओनली हैपन व्हेन द RUDs are served, copy of RUDs are served to the taxpayer along with the show cause notice. Right, friends? Are you with me? Yes, please. Yes or no? Write in the chat box. Wonderful. And when adjudication happens, the order should be speaking order with clear findings and reasoned order. You can challenge that order also. Don't worry. Now, the department asked 50 documents from you. You supplied them 50 documents. In next chitti, department again asked 5 documents out of those 50 documents already supplied. What would you do? You would start cribbing. है यार चल्ला ऑफिसर है यार, पता ही नहीं है कुछ कागज ऑलरेडी दिखते हो रहे. Don't be personal. Don't be personal. Play like a player. Simple. It's a game. Play like a player. Supply the document again. Write in the chitti. Already supplied to you via such and such letter. Again supply. Tomorrow, when you go to the court or a tribunal, you would say that, sir, your lordship, documents were supplied. He again asked me. Clear exhibition of the fact he did not apply mind into the case, and that is why order is null and void. So you adjudication at this level is the beginning of the litigation. Be very, 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 very careful, cautious. अगर इसको lightly लिया तो सोच लीजिएगा, ट्राइब्यूनल है नहीं, पता नहीं कब बनते हैं, कोर्ट सीधा हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट 107 में अपील है अपीलेट अथॉरिटी पे. और हम सब जानते हैं कि जब एडवांस रूलिंग भी यहाँ पर एक ही इशू पर वेरियस एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज डिफरेंट जजमेंट्स दे सकती हैं, तो भाई रेवेन्यू अथॉरिटी का जजमेंट का तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कह दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कह दिया, वही अपीलेट अथॉरिटी अपील्ड करेगा. तो द रिलीफ हैज टू कम इन द ट्राइब्यूनल or the now tribunal in absence of tribunal in the high court. So be very, very careful while replying. Give point wise reply of every show cause. Give reply in one go. Try to reply in one go. Don't say that you do not have documents or documents are available at some record keeper or some chartered accountant or something like that. Don't do that. Or advocate, don't do that. Don't do a mistake of not keeping a verbatim copy of set of documents supplied to the department. हम लोग बहुत, हमारे पास जितने भी अपील के केस आते हैं ऐसे ही होता है कि एडजुडिकेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट क्या जमा कराया पता ही नहीं चल रहा. जितना क्लोजली एडजुडिकेशन प्रोसेस को लिया जाएगा उतना आसान फ्यूचर का लिटिगेशन होगा. और वैसे तो शो कॉज नोटिस ठीक है, मैं मानता हूं कि शो कॉज लेवल पे, एडजुडिकेशन लेवल पे आपको रिलीफ हर बार हो सकता है ना मिले, लेकिन
आपका प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा अपीलेट लेवल पे. सो दैट इज व्हाई द मूवमेंट, देखिए when I was doing training, I was told that whatever return you file, compliance you make, assume that scrutiny is going to happen for the compliances made by you, by the department. हर रिटर्न की कंपलसरी स्क्रूटनी होगी, इस तरह से रिटर्न फाइल करो. हम आज भी इसी तरह से रिटर्न फाइल करते हैं. सिमिलरली शो कॉज नोटिस के रिप्लाई बनाते हुए आप ये मानकर चलो कि भैया यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा. तो यहाँ जो फैक्ट्स आप, क्योंकि ग्राउंड्स अगर आपने यहाँ प्रॉपर नहीं बनाए, यहाँ प्रॉपर फैक्ट सप्लाई नहीं किए, देन इट वुड बी डिफिकल्ट कि आप अपीलेट लेवल पे और फर्दर फैक्ट्स को सप्लाई कर पाएंगे. सो इट इज वेरी वेरी I would say very significant step towards the litigation. Then last part is it's about recovery. Friends, adjudication is done, order passed. Now recovery is initiated. The moment adjudication is done, order passed, section 79 can be invoked and recovery can be made. Even section 83 can be invoked. आप कहेंगे 83 तो कॉमन सेक्शन है, कभी भी इन्वोक हो जाता है. हालांकि उसकी सेंटिटी बड़ी पॉज है, बहुत पवित्र सेक्शन है. वो होते ना, जैसे हम जब महागुरु आदि शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो दिमाग में एक इमेज आती है, आदि शंकराचार्य जितनी इमेज है उसकी सेक्शन 83 की, इतनी प्योरिटी है उसमें. वो बात अलग है कि लोका ने राम खिलौना जाना. गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान गुरु नानक देव जी ने बोला है, लोका ने राम खिलौना जाना. तो वो बात अलग है. अब आप कहेंगे तुम तो मतलब बिल्कुल भागवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब को लिंक करने की कोशिश कर रहे हो. दोस्तों यही होना चाहिए, क्योंकि यही ओरिजिन है ह्यूमैनिटी का. ये कानून जो है हमने लिखा है, और लिखा किसने, कैसे लिखा है, उसी के बेसिस पे लिखा है. तो जब इस कानून को पढ़ना है तो उस कानून को समझना आवश्यक है. So what I was trying to bring home was that recovery can be initiated under section 79, bank account can be attached under section 83, and these all can be stayed after filing the appeal before the appellate authority under section 107 within 60 days of the service of the order. Now pre-deposit is required to be made against the disputed demand, and that is 10% of the disputed demand. मैंने आपको पूरा प्रोसेस आखिर तक का कहानी समझा दी है, शुरुआत से आखिरी, मतलब बिल्कुल बेसिक से ऑडी अल्टम पार्टम से. आपको मैं 107 तक खींच के ले आऊं. 160 डिस्कस नहीं करूंगा अभी. सो आप अपील कीजिए तभी रिकवरी स्टे होगी, एल्स रिकवरी स्टे नहीं होगी. ध्यान रखिएगा. शो कॉज नोटिस के अगर ऑर्डर एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, उसमें रिकवरी ऑर्डर कर दी उसने, डिस्प्यूटेड डिमांड जो है, अनडिस्प्यूटेड डिमांड के लिए तो अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है, पे कीजिए. डिस्प्यूटेड डिमांड जो है उसका 10% प्री डिपॉजिट कीजिए, अपील फाइल कीजिए. ओके. अपील जीत जाते हो तो प्री डिपॉजिट ऑफ कोर्स वापस आ जाएगा. हार जाते हो तो भाई साहब रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट एडजस्ट हो जाएगा. सिंपल है. तो जी सर्विस की बात मैंने आपको सारी कहानी बता दी. तो ये हमारा लगभग कहानी यहाँ पर खत्म होगी जी. इसमें और कुछ नहीं बचता. अब हम क्या कर सकते हैं, 10-15 मिनट आपके सवाल जवाब ले सकते हैं. मैंने ऑलरेडी इसको शेड्यूल को 5 बजे तक का कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब भी चाहें इसको क्लोज कर सकते हैं. तो अब आपका कोई भी सवाल हो इस सब्जेक्ट के ऊपर और तो आप ले सकते हैं. उससे पहले मैं फक्कड़ साहब और उनकी पूरी टीम का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी छोटी मोटी जो भी नॉलेज है वो आपके साथ बांट सकूं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सभी का. नरेश जी, हमारे मक्कड़ साहब, और भी जो भी मैनेजमेंट टीम में हमारी पूरी फरीदाबाद एडवोकेट्स जो हमारे मित्र हैं. हम तो इनको बड़ा भाई कहते हैं सर, ये तो 200 साल पुराना प्रोफेशन है, हम 70 साल पहले पैदा हुए थे. ठीक है जी. तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बस सर आखिरी में. सर ये सर क्यों सर, ये ना मतलब ये किस्से जरा मेरे फेवरेट है सर. ये तो इन अर्ली डेज
दी एडवोकेट्स आज जो आप उसे क्या कहते हैं, गाउन कहते हैं ना सर हम, मतलब मैं भी क्वालिफाइड एलएलबी तो हूं बट नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो गाउन यूज्ड टू बी कॉल्ड टोगा. It used to be longer enough, reaching till the foot, मतलब लगभग पूरा पैरों शूज तक जाता था, टोगा. And that toga, I'm telling you, the sanctity of the profession, the importance of the profession in the mankind, the inherent values which are there into the profession, still there. उस टोगा के पीछे मित्रों एक बहुत लंबी पॉकेट होती थी. आज भी पीछे देखते हो आप, कट बना होता है, यहाँ पर एक पट्टी लगी होती है, वो पॉकेट होती थी वहां. तो वकील साहब अपेयर होते थे केस में, जीतते थे, मुवक्किल पूछते थे कि भाई साहब, वकील साहब फीस, तो वकील साहब कहते थे भैया जो तुझे देना है पीछे पॉकेट में डाल दे. वो देखते तक नहीं थे कि मुवक्किल ने दिया कितना है. घर जाते थे, ऑफ कोर्स जिसकी जो स्थिति है, अगर शादीशुदा है तो खुद तो निकालेगा नहीं, बीवी निकालेगी, ठीक है. तो बाद में पॉकेट में हाथ डाल के पता लगता था कि भाई क्या फीस आज वकील साहब को मिली है. इतना प्योर, इतना पवित्र प्रोफेशन है, इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, इतना नोबल प्रोफेशन है हमारा लॉ का. तो ये सभी वकील बड़े भाइयों को मेरी तरफ से एक जो है एक वो है डेडिकेशन है ये इस किस्से के माध्यम से. बहुत बहुत धन्यवाद. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर जस्ट अ सेकंड. हाँ जी प्लीज, यू कैन अनम्यूट हिम. आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन करके. पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज. जी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके. हाँ जी, आप अपने आप को खुद को अनम्यूट कर लीजिए अपने को. अरे सुशील गुप्ता जी भी नजर आ रहे हैं हमें तो. प्रणाम सर. गुप्ता जी ने हाथ उठाया हुआ है, क्या बात है. गुप्ता जी आप हाथ नीचे करो, आप हाथ उठाओगे तो हम कुर्सी से उठ जाएंगे. अनम्यूट करो सर अपने आप को. सर अब अनम्यूट कर पाया हूं. मैंने हाथ इसलिए रेस करा था कि मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा अपने आप को. अच्छा जी सर मैं अब मैं जो है सबको अलाउ कर रहा हूं, लेकिन मेरी विनती है कि एक एक करके अनम्यूट करें अपने आप. अगर कोई ऑलरेडी बोल रहा है तो आप प्लीज ना करें. जी गुप्ता जी, आज तो हमारा दिन बन गया. आप सुशील जी भाई साहब फिर चले गए, म्यूट हो गए, सॉरी. ये कीजिए. हाँ जी भाई साहब, अब अनम्यूट कर सकते हैं आप. सुशील जी कीजिए. सुशील जी सर हाथ तो उठा लिया, आप अनम्यूट कीजिए खुद को. आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ सर. Sir, anyways, if anybody else, I think Sushil ji's connection is lost. Anybody else wants to ask any question? हेलो मक्कड़ जी. हेलो हेलो जी अवकाश जी बोल रहे हैं. हाँ सर मैं बोल रहा हूँ. बोलिए सर, बोलिए. हाँ मैं बोल रहा हूँ सर. हाँ सर नमस्कार. पहले तो सभी को नमस्कार करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने पर वो वेबिनार रखी. तो मेरे छोटे से क्वेश्चन है और हैं तो बहुत ही मतलब ज़्यादा ही छोटे क्वेश्चन है. वो ये है, एक तो सर जो डिस्प्यूटेड डिमांड जमा करते हैं 10% जो जमा करते हैं, वो डिमांड में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा या हम खाली टैक्स का जमा करेंगे? सर अगर उसने टैक्स इंटरेस्ट बनाया है तो आपको डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट जमा करना, दोनों जमा करने पड़ेंगे. और एक सर ये था कि जो आप कह रहे थे कि जब शो कॉज नोटिस आता है तो उसमें उसे क्वांटिफाई करना चाहिए. तो क्वांटिफाई वो टैक्सेबल अमाउंट करेगा या उस पर टैक्स की भी कैलकुलेशन करके देगा? टैक्सेबल प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तीनों कैलकुलेशन करके देगा. तो ज्यादातर उस पर देते हैं खाली टैक्सेबल अमाउंट लिख देते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं. अब इस केसेस में क्या करना चाहिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ. आप नोटिस को चैलेंज ना करें,
आप उससे बोलें कि मुझे कैलकुलेट करके दे अमाउंट। अच्छा अच्छा, ठीक। आप अपनी चिट्ठी में बोले कि सर कैलकुलेटेड नहीं है इस पॉइंट में अमाउंट, तो कृपया करके आप इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, नोटिस ठीक को है। चैलेंज ना करें हर बात पे, क्योंकि क्या है देखिए नहीं, सही बात है। मैं समझता हूँ, देखिए सीएस का माइंडसेट और वकीलों का माइंडसेट में थोड़ा अभी डिफरेंस है। हालांकि मैं गलत सही नहीं बोल रहा किसी को, इनफैक्ट मैं सही वकीलों के माइंडसेट को समझता हूँ फ्रैंकली, दो आई एम रिप्रेजेंटिंग दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं उनका जो है चुना हुआ नेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वकीलों का माइंडसेट बेटर है, क्योंकि वो जो है हर बात को जब चैलेंज किया जाता है तो सामने वाला बैकफुट पे चला जाता है। हर बात को ज्यादा झुकना भी हाथ जोड़कर काम कराने में सामने वाला सोचता है इसको कुछ पता ही नहीं है, कर लो जो करना है। थैंक यू। जी सुशील जी भाई साहब कहाँ हैं? और सर के मिश्रा साहब, हाँ जी मिश्रा साहब हाँ please। जी, नमस्कार अरोड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है अरोड़ा जी? आ रही है सर, आ रही है, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये सेक्शन 70 को और ये खास करके शो कॉज नोटिस को आपने जो बताया, इसमें मेनली जो आजकल फेस आउट हम कर रहे हैं सेक्शन 70 की समनिंग कर रहे हैं। इसमें एक चीज आप हमें थोड़ा सा स्पेशली बताएं कि इसमें रीजन टू बिलीव शो करना नोटिस में जरूरी है या नहीं है, जो नहीं कि है, 90% केसेस में वो नहीं शो करते। नहीं है सर, जरूरी नहीं है। आपकी अभी सिर्फ इस 70 से ना सर कुछ भी रिकवरी नहीं होती, आपसे जी सिर्फ वो स्टेटमेंट मांगेंगे आपका पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर कि आप इस व्यक्ति को जानते हो, आपने इससे परचेज किया है। संबंध जो है लार्जली जो है फेक इनवॉइसिंग के केस में। नहीं, उस केस में कोई उन्होंने उसमें नोटिस में कुछ नहीं दिया। उन्होंने 2 रीजन देने होते हैं नोटिस में कि इन पर्सन आपसे हमें स्टेटमेंट लेनी है और यू सबमिट द डिटेल ऑफ सेल एंड परचेज फॉर द ईयर सो एंड सो, दैट्स ऑल। दे आर इंडियन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, इंडियन पीनल कोड में ये। सो ये कारण जो है आप मांग सकते हो, बट जरूरी नहीं है उन्हें देना है। इनफैक्ट स्टेटमेंट भी जो है वो बहुत सारे लोगों का व्यू है कि जरूरी नहीं है, बट पर्सनली मैं समझता हूँ कि वो स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए। दिस इज माय राइट। लेकिन प्रैक्टिकलिटी और लॉ में बहुत डिफरेंस है अरोड़ा जी, क्योंकि अभी जो इंटेंशन दिखती है जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, उनकी एक वन पॉइंटेड प्रोग्राम है उनका कि भी कैसे हमें डीलर को अपने प्रेशर में लेके आना है, कैसे हमें उससे, मतलब फिर लास्ट में वो आ जाते हैं कि जी बुला लो ना जी, उससे बात करते हैं। तो ये जो इस तरीके की नेचर गवर्नमेंट की अगर रहेगी, मैं एक पर्टिकुलर केस आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक केस था कि उसमें वो बहुत बार जा रहे थे बिजनेस प्रेमिसेस पर, उनको बिजनेस प्रेमिसेस नहीं मिलता था। इनफैक्ट उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो बिजनेस प्रेमिसेस बंद हो चुका था 2018 में। उसकी 3 यूनिट थी, एक यूनिट जो मेन यूनिट थी वो 18 में बंद हो गई, एक यूनिट उसकी 2017 में बंद हो गई और एक यूनिट उसकी चलती है। लेकिन उन्होंने ये फैक्ट ही नहीं देखा कि भाई इसकी एक यूनिट और है और बिलिंग वहां से हो रही है। उन्होंने कहा ये आपकी फर्म बंद है। उस बेस पे उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट की, वहां गए और वहां से उन्होंने कहा भाई अड़ोस पड़ोस से भी लिखवा है कि ये फर्म बंद चल रही है। और मेरे फिर उन्होंने नोटिस दिया और फैक्ट में बात बताई क्या कि ये फर्म बोगस है जी, ये बिना प्लेस के और अपना बिजनेस कर रही है, जबकि फैक्ट्स बहुत दूर थे। उन्होंने पोर्टल खोल के ही नहीं देखा। हाँ ये सर ये प्रॉब्लम है, बट आपने वो दोनों प्रेमिसेस को रिमूव कर दिया था पोर्टल से। सर पोर्टल से रिमूव तो जब होगा ना, एक पोर्टल के लिए एक रिमूवल के लिए तो हमने एप्लीकेशन डाली हुई है, दूसरी में कुछ लीगल हिचेस थे, उन्होंने कहा इसको हम क्लियर कर लेंगे तब इसको हम रिमूव कराएंगे, तो दूसरे के लिए अभी पेंडेंसी है। एक्चुअली ये सर दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी। ये लोग इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, रियलाइज नहीं कर रहे, और हर छोटी से छोटी बात के लिए सम्मन कर रहे हैं। हालांकि इवन एफएक्यूज रिलीज्ड हैं, सीबीईसी ने पुराने टाइम में 2015 में एक सर्कुलर निकाला हुआ है सम्मन्स के ऊपर, कि भाई सम्मन इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होने चाहिए, सम्मन शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट, सम्मन शुड नॉट बी मेड टू दी टॉप मैनेजमेंट। मगर वो सब बातों को खिल्ली उड़ाई जा रही है। मैं मतलब आई अपेयर डे इन डे आउट बिफोर एंटी इवेजन डीजीजीआई वेरियस कमिश्नरेट्स, सो वी ट्राई एंड एजुकेट देम। बट क्या है सर, अब जहां तक मौका मिलता है बताते हैं, बट अभी फिलहाल एक्चुअली सर समस्या पता है क्या है, मैं फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता हूँ हर बार। समस्या है फेक इनवॉइसिंग। जी
सर ये फेक इनवॉइसिंग ने पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर कर दिया गवर्नमेंट का इन द टैक्स पेयर्स। हालांकि वो हैं केवल 2% लोग। कल आपने मक्कर साहब देखा था जब हमने डिटरमाइन किया कि भाई अगर 50 लाख करोड़ के रेवेन्यू में 1 लाख करोड़ रुपए का आपका फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट है, so that becomes 2% only। तो 2% रेवेन्यू के लिए आप 98% लोगों को, मतलब यू कैन नॉट पुट देम टू दिस ट्रबलसम ग्रूलसम प्रॉब्लम जो कि अभी मिश्रा जी बता रहे हैं। तो आपकी बात जेन्युइन है सर, और हमेशा मैं क्या करता हूँ सर, देखिए रोज डेली बेसिस पे मैं इस बात को हाईलाइट करता हूँ लोगों के सामने। आज मेरी रिक्वेस्ट है मिश्रा जी के एक सवाल के माध्यम से सभी मित्रों से अगेन दोबारा, कि इस मीनेंस को, ये अगर आप चाहते हो ना कि इन प्रॉब्लम से दूर होना है, ये जो परेशानियां हरेसमेंट हो रही है डिपार्टमेंट कर रहा है, अगर इससे दूर, देखिए मेरे को सिर्फ डिपार्टमेंट की गलती नहीं निकालनी है। जहां मेरे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेरे टैक्स पेयर्स में, मेरे प्रोफेशनल्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमें वहां भी उस बात को रियलाइज करना चाहिए, तभी विन विन सिचुएशन हो सकती है। वरना सिर्फ एक पार्टी को आप क्रिटिसाइज करते रहे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। सर हम सब प्रोफेशनल्स को, मिश्रा जी आप बहुत सीनियर हैं प्रोफेशन में, हम सब प्रोफेशनल्स को एक ओथ लेनी चाहिए कि जो भी फर्जी इनवॉइसिंग में डील करता होगा ना, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। अगर हम ये कर सके तो डिस्करेजमेंट मिलेगी, एक डेटरेंट मिलेगा हमारे टैक्स पेयर्स को इनवॉइसेस में डील करने के लिए विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और इवेंचुअली धीरे 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 ये जो अभिशाप पूरी इकोनॉमी पे लगता जा रहा है, स्पेशली इन जीएसटी, वो खत्म होगा। और ये जो इतनी ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग डिपार्टमेंट कर रहा है हम सबकी, आम आदमी की, वो धीरे धीरे कम होगा। अरोड़ा जी बात आपने ठीक बिल्कुल कही कि भाई हमें नई केसेस लेने चाहिए, लेकिन ये ऐसा कौन सा टूल हमारे पास है जो हम ये पता लगा सके कि भाई इसकी फेक इनवॉइसिंग होगी। अगर हम ये पहले ही पता लगाएं तो वो कहेगा ये रहने दे, मैं तो दूसरे सीए से कराऊंगा, या मैं और बहुत तेरे जैसे बहुत बैठे। क्योंकि हम लोग करते हैं बेसिक लेवल की प्रैक्टिस, हमें वो भी देखना पड़ेगा अपना एस्पेक्ट। सर ऐसे तो हम सारे क्लाइंट एक कोने में उठा के रखने पड़ेंगे हमको। आप एनकरेज कर सकते हैं सर कि भाई ये काम मत कर। हाँ, यस इट कैन बी। आप एजुकेट कर सकते हैं सर कि भाई ये इसका रिजल्ट ये है, देख ले भाई, आगे से ध्यान रखियो इस बात का। तो मतलब थोड़ा सा सर कहीं ना कहीं हमें मिडवे निकालना पड़ेगा सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, मिडवे निकालना पड़ेगा। तो सुमित अग्रवाल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बरेली की धरती से आपको नाथ नगरी से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो हमारे परम मित्र हैं, रेगुलर हैं आप हमारे साथ। जी 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 सर, एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करके जो है, जिन लोगों ने एनुअल रिटर्न फाइल किया हुआ है जीएसटी का, उनके पास वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का नोटिस आया हुआ है कि DRC 3 जो जमा किया है चालान, वो उसकी डिटेल दीजिए, क्यों करा हुआ है और कैसे किया हुआ है। वो आपने उसमें रिटर्न में फर्निश नहीं की हुई है। अब एनुअल रिटर्न में तो इस तरीके का कोई अलग से कॉलम नहीं है, हमने तो बिल्कुल सही है आपकी बात, ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं है, टेबल 9 में भी कोई प्रोसेस नहीं है। जी 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 तो आप जवाब दीजिए DRC 03 का कि मैंने ये कैलकुलेशन है मेरी, ये एडिशनल सप्लाई है या मेरा आउटपुट इनपुट रिवर्सल है, और इस वजह से मैंने DRC 03 फाइल किया। एक्चुअली सर वो जानना चाहता है कि आपने किस बेसिस पर कैलकुलेशन की है। जिन्होंने सर फाइल नहीं किया उन्हें तो कोई नोटिस नहीं आता, जिन्हें फाइल किया है उन्हें और पकड़ रहे हैं वो होता ऐसे ही है अग्रवाल साहब, सुमित भाई साहब, ऐसे ही होता है। ये देखिए, ये that shows the strength of one's character to face the challenge and win it over। अब जब तक चैलेंज ही फेस नहीं करेंगे तो जीत तो होगी नहीं, क्योंकि लड़े ही नहीं। ठीक बात है सर। एक चीज और पूछना था, जैसे इसी तरह सर्विस टैक्स में भी नोटिस आ रहे हैं पुराने पीरियड के 15, 16, 16, 17 के, और उसमें जैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके नोटिस आ रहे हैं कि आपने जीएसटी पे नहीं, सर्विस टैक्स पे नहीं किया हुआ है, तो उसके भी रिप्लाई देना कंपलसरी है क्या? इसका फेट क्या है सर, क्या वैलिडिटी है उन नोटिस? सर वैलिडिटी है, पूरी वैलिडिटी है उनकी। अच्छा, जो जवाब देना पड़ेगा सर आपको। ठीक है सर। सर जजमेंट करवा लोगे? हाँ जी, हाँ जी सर। मैं सर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सुमित जी के लिए। सुमित जी DRC 03 के साथ जब जमे करते हैं ना सर, तो वहाँ पे एक अटैचमेंट का ऑप्शन है सर,
अगर आप अपनी कैलकुलेशन को उसके साथ अपलोड कर देंगे ना सर, तो इट इज बेटर फॉर यू। जी जी हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। Right, friends, I hope we must have add some value to each one. And thank you, Makkad Sahab. Now over to you for the concluding remarks. राजेंद्र जी, मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जब स्टार्ट किया तो आपने सर्कुलर बताया था विच वाज इशूड बाय सीबीईसी ऑन 19 जनवरी 2017। सर उसका मुझे प्लीज नंबर बता दीजिए, सर्कुलर नंबर क्या है? नंबर नहीं है इसमें, अच्छा मैं आपको सर्कुलर ही भेज दूंगा, ठीक है। आप शेयर कर लीजिएगा सबके साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किसी और का अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसको यहीं समाप्त करते हैं राजेंद्र जी। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी फॉर योर विजडम वर्ड्स, और आई होप दैट एवरीवन हैज एनहांस्ड his knowledge with your words. I request मिश्रा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और एक छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। Thank you, Makkad ji, for giving me this opportunity. आदरणीय मक्कड़ जी, जीएसटी स्टडी सर्कल फरीदाबाद के हनुमान, और आज के हमारे ओजस्वी वक्ता, जिसको हम ओजस्वी वक्ता कहेंगे, राजेंद्र अरोड़ा जी, मेंबर NIRC। इनके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, छा गए गुरु। एक ऑडियंस होती है, एक वक्ता होता है जिसमें लोग ताली बजाना स्टार्ट कर देते, इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, और एक वक्ता ऐसा होता है जो लोग ताली बजाना ही भूल जाते हैं, इतने उसकी बातों में मशगूल हो जाते हैं तो वो ताली बजाना भूल जाते हैं। तो आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम अरोड़ा जी की बातों में ताली बजाना ही भूल गए और इनकी बातों को इतने ध्यान से सुनते रहे। इन्होंने कहा कि मैं तो बरगद का बंदर हूं, मैं बंदर तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा इनके लिए। हाँ, ये जो जीएसटी रूपी जो लंका है ना, इसके हनुमान जरूर हैं ये। धन्यवाद। इसमें घुस के इन्होंने एक एक फल को तोड़ के चख रखा है, और वो उसी का स्वाद ये हमें बताने की इन्होंने आज हमें कोशिश करी, और बहुत अच्छा लगा इनके ज्ञान से हमें। बाकी सेक्शन 70 या जो ऑफिसरों की समनिंग है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि वो एक भेड़िए के तो उसके बकरी के मेमने और शेर वाली कहावत है। तो शेर का बकरी का मेमना पानी पी रहा था नदी के किनारे, तो शेर आ गया, उसका मन ललचा ऐसे खाऊंगा। उसने कहा भाई तैने मेरे को गाली दी थी रे पिछली साल। बोले क्यों झूठ बोल रहे हो जी, मैं पिछली साल तो पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तो 6 महीने का हूँ। बोले तैने नहीं तो तेरी माँ ने दी होगी, पर यह है कि मैं तो तुझे खाऊंगा। तो व्यापारी का और डिपार्टमेंट का रिलेशन कुछ ऐसा होता जा रहा है कि बोले भाई कुछ भी हो, मुझे तो तेरा ये बुक्स खोल के देखनी है कि तेरे इसमें है क्या, फेक बिलर दिखा कौन कौन से। एनीवे, ये सब चलता रहेगा, और बहुत अच्छा लगा आपने हमें बताया। आपके आज पहली बार हम रूबरू हुए आपसे, बट रियली इट्स मेमोरेबल स्पीच, and I'll keep in my mind, and all my viewers of Faridabad will keep in my mind. Thank you, sir. in I'm very their minds of your speech. Thank you. Thank you very much. Thank you Rajendra. Thank you, everyone. Thank you Thanks for Thank you, Makkad ji everyone. also for Thank you. bringing such a eminent speaker. Thank you. Thank you.